सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। तो आज समरी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ महाराज जी, दिलीप। दिलीप भाई? हाँ जी। अच्छा, अब तो क्या टॉपिक है? रामदत्त ना जी। और उसके बाद ज- ये दोनों नहीं, क्लियर नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा महाराज जी, क्लियर। हैं? हाँ बराबर, हाँ बोले जी। अच्छा, मेरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज जी, क्लियर है। क्योंकि मैंने क्या है कि कमरा बहुत गर्म है, मैंने एसी चला रखा है, एसी का थोड़ा आवाज हो रहा है, लेकिन अच्छा आपको उससे डिस्टर्ब नहीं महाराज, कुछ नहीं डिस्टर्बेंस नहीं, नहीं है। कुछ ठीक नहीं। है, that's all। जी चालू करें महाराज जी? हाँ चलो भाई दिलीप भाई। जी महाराज जी प्रणाम। माँ शारदा देवी, रामकृष्ण देव एवं स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करते हुए मैं हाउ टू लिव विद गॉड के चैप्टर 17 एवं 18 की समरी करने जा रहा हूँ। प्रथम, द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण अकॉर्डिंग टू रामचंद्र दत्ता। Ramchandra Datta was one of the most significant householder disciples of Sri Ramakrishna. Early life and career. Ramchandra Datta, born on 30th October 1851 in Calcutta, was a bold, principled individual from a young age. He studied at the General Assembly's institution and later at the Campbell Medical School. After graduation, he worked as assistant to the government quinine examiner, later becoming the government chemical examiner and a lecturer at Calcutta Medical College. Known for his scientific brilliance, he discovered an antidote for dysentery and earned membership in the Chemist Association of England. Initially, Ram was a staunch atheist, shaped by scientific rationalism. He believed material comfort was the highest goal in life. However, the death of his daughter during Kali Puja devastated him and opened his heart to spiritual inquiry. Seeking answers, he visited religious leaders but found no satisfaction until he learned of Ramakrishna from Brahmo leader Keshav Chandra Sen. Meeting of Ramakrishna. On 13th November 1879, Ram visited Ramakrishna at Dakshineshwar. The master welcomed him warmly and even identified him as a doctor. Ramakrishna saluted them, addressing them as Narayan, and asked them to sit down. Then he smiled at Ram and said, "Hello, are you not a doctor?" Pointing to Hriday. "He is suffering from fever," to check his pulse. Ram was astonished that Ramakrishna knew he was a doctor. After examining Hriday, Ram reported that his body temperature was normal. Ram was deeply impressed by Ramakrishna's insight and simplicity and began regular visits. He asked profound questions about God's existence, and Ramakrishna answered with vivid metaphors and assurance that God could be seen through faith and practice. Though influenced by the Brahmo Samaj, which denied God's form, Ram gradually accepted the master's teachings. Ramakrishna emphasized faith, saying, "You get what you desire," and taught that devotion and effort, like fishing, are necessary for spiritual realization. Spiritual transformation and devotion. Ram's skepticism turned into deep faith. He began hosting spiritual gatherings at his home, overcoming his earlier miserliness. The first major visit from Ramakrishna took place on a full moon day in early 1880s, and from then
Ram hosted yearly festivals in the master's honor. He became well known among the devotees for organizing such events. At the master's urging to several devotees, Ram generously used his wealth to support the poor and spiritual seekers. His wife, Krishna Presi, also supported his spiritual life. To avoid complaints from neighbors due to nightly kirtans, Ram bought a secluded garden house in Kan, Kankur Gachi in 1883, where Ramakrishna visited and blessed the place. Role in Ramakrishna's final days. During Ramakrishna's final illness, Ram helped move him from Samapukur to Kosopar and took on organizational and financial responsibilities. He was present on 1st January 1886 when Ramakrishna blessed devotees in a heightened spiritual state, later celebrated by Ram as Kalpataru Day. Before his death in 1899, Ram requested some of his ashes be buried at Yoga Dhyan entrance, so devotees would walk over him, symbolically blessing him forever. Ramakrishna's first biographer. Ram was the first to write a biography of Sri Ramakrishna, published in 1890. Sri Ramakrishna Paramahansa Deva Jivaratna, based on जीवन वृत्तांत श्री रामकृष्ण परमहंस देवेर जीवन वृत्तांत based on personal experiences, testimonies, and research. The biography had 22 chapters covering Ramakrishna's life, sadhanas, visions, pilgrimages, and disciples. Though invaluable historically, Ram's interpretation reflected his personal understanding. Tattva Sar and Tattva Prakashika. In May 1885, Ram compiled Ramakrishna's teachings in a book titled Tattva Sara. Though initially some devotees objected, the master approved the work, advising Ram to see himself as a divine instrument. This 6-chapter book focused on God, his nature, sadhana methods, and God realization. In 1886 and 1887, Ram expanded this work into Tattva Prakashika, a 3-volume collection of 300 of the master's teachings, including Ram's interpretations through science, philosophy, and scripture. He emphasized that Ramakrishna's teachings harmonize spiritual, mental, and material sciences. Public preachings and legacy. Ram was the first to preach publicly that Ramakrishna was an avatar. He built a temple for the master's relics and began giving lectures on Ramakrishna's life from 1893 to 1897 at Calcutta's major theatres. Though some devotees disapproved, Ram firmly defended his mission. His first lecture, Is Ramakrishna Paramahansa an Avatar?, delivered on Good Friday, used scriptures, reasons, and experience to validate his claim. Though his works remain untranslated from Bengali, Ramchandra Dutt's unwavering faith, service, and pioneering efforts made him a foundational figure in spreading Ramakrishna's message. Yes. Now, second, the Gospel of Sri Ramakrishna. Mahendranath Gupta, famously known as M, was the author of the Gospel of Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna Kathamrit. According to Mahendranath Gupta, M, Mahendranath, known as N, was born in Calcutta on 14th July 1854. Raised in a spiritual household, he was especially close to his mother. At age 4, he visited the chariot festival of Jagannath at Mahesh with her. आज भी महाराज जी जगन्नाथ का जन्मदिन है. On the return, they visited the
Dakshineswar temple, where young M became separated from his mother. A kind Brahmin comforted him and later believed this was Sri Ramakrishna himself, who was then the priest of the Kali temple. From an early age, M was religiously and contemplatively. At 5, he would gaze at the sky from his rooftop or stand in monsoon rain. He practiced early devotion by saluting his family priest and praying daily to Mother Kali and Sitla. He, he began keeping a diary in the 8th grade, a habit that ultimately led to his recording the Gospel of Sri Ramakrishna. Reflecting on this, he once said, I was an apprentice for 15 years. A brilliant student, M studied at Hare School and later graduated from Presidency College in 1875, ranking third. He was greatly influenced by Keshav Chandra Sen, leader of the Brahmo Samaj, whose cousin Nikunja Devi M got married. A devoted scholar, M became a headmaster and a teacher of both Eastern and Western thought. His deep knowledge of the Bible impressed even Christian ministers. To one, M remarked, we lived with Christ, equating Ramakrishna and Jesus in spiritual essence. M's life took a turn when family disputes and his mother's death disturbed his peace. Choosing to leave his family home, he and his wife stayed with his sister in Baranagar. There, through his brother-in-law Ishan Kaviraj, Ramakrishna's physician, M was led to Dakshineswar, where he met Ramakrishna for the first time. That moment marked the beginning of a deep spiritual journey. M played both a witnessing and participatory role in Ramakrishna's spiritual life. His love for the master was profound. His self-identity became interwoven with Ramakrishna's presence. This intimacy enabled him to record the gospel of Sri Ramakrishna, a masterpiece of world spiritual literature. M captured not just events and teachings, but the essence of Ramakrishna's being, his divine moods, ecstasis, devotion, purity, humor, discipline, and wisdom. He meticulously documented Ramakrishna's talks with God and interactions with visitors. One poignant, causing sadness or pity, entry captures the Master's tearful prayer to the Divine Mother. Mother, may those who come to you have all their desires fulfilled, but don't make them give up everything at once. Please reveal yourself to them now and then. How else will they live? How will they be encouraged if they don't see you sometimes? Through his devotion and spiritual sensitivity, M preserved the living voice of Ramakrishna for generations to come. Both Ram and Mr. M exemplified how to live with God while fulfilling worldly duties. रामचंद्र दत्त एवं महेंद्रनाथ गुप्त इन महान आत्माओं की जीवन गाथा को साझा करते हुए मेरे हृदय में अपार श्रद्धा और भावुकता का संचार हुआ है। इनकी भक्ति, समर्पण और लेखनी हमें आज श्री रामकृष्ण के सानिध्य का अनुभव कराती है। आप सभी को धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। बहुत अच्छा Wonderful. किया, वेरी गुड, धन्यवाद। Very बहुत ही crisp. सुंदर किया, वेरी गुड। चलो भाई, अब क्वेश्चन शुरू करें। जी महाराज जी। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन करेगा सबसे पहले? महाराज प्रणाम। आप सतीश बताएं। बोल रहा हूँ। हैं? सतीश बोल रहा हूँ, सतीश महाराज। कौन महाराज है मुझे सबसे जाना पहले? है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी नमस्ते, सभी नमस्ते कर रहा है, प्रणाम, सबको अर्थ हो गया। जी अब आप क्वेश्चन सुबीर मजूमदार करो तो। हाँ। नहीं है सुबीर मजूमदार?
है महाराज जी, चालू कर रहे हैं, अनम्यूट कर लो। हाँ 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 महाराज जी, पहला सवाल है, बिकॉज ऑफ ग्रीफ रामचंद्र दत्ता, हाँ, it is described on page 352, यस, first paragraph, that he was in search of God. He went in search of God. Now my question is, why does not happiness or luxury evoke Godward thinking? What are the reasons for the restlessness for God? एक्चुअली 3 सवाल इसमें जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल है कि जो हैप्पीनेस या लग्जरी में है, उसकी ठाकुर की तरफ थिंकिंग जाती क्यों नहीं है? दुख तो ले प्रश्न जाती ये है। है कि क्यों जाना चाहिए, प्रश्न ये है कि भगवान की तरफ क्यों इस लोगों का मन जाना चाहिए, ये बताइए। तो आप ये जवाब दीजिए पहले, भगवान की तरफ हमारा मन क्यों जाना चाहिए, क्या जरूरत है भगवान की? बिकॉज उसमें देयर इज सुप्रीम ब्लिस। कौन बोलता है सुप्रीम पद को मानता है, मिलता तो है नहीं। आज लोगों को तो जितना अभी सुख ब्लिस मिल रहा है, आनंद है, बीवी बच्चों का आनंद है, पैसा धन है, उसमें सुख तो है, उसको क्या चाहिए, उससे अधिक सुख की क्या आवश्यकता है लोगों को? ज्यादा पैसा हो तो ज्यादा कमा लेंगे, है, जाएंगे, और क्या चाहिए? राइट महाराज, वो तो सुख के लिए कोई भगवान या इस प्रकार से वो नहीं जाएगा, वो जो जब महाराज दुख आएगा तब होगा। राइट। तो महाराज बहुत बेसिकली ये क्वेश्चन। होता है कि छोटी छोटी खुशियों में ही लगे रहते हैं, हाँ, इसलिए और क्या, हाँ। सुप्रीम ब्लिस जो हम कहते हैं उसकी बारे में सोचते भी नहीं है, यही बात है। कल्पना ही नहीं कर सकते सुप्रीम किस किसे कहते हैं। फोटोग्राफी हाँ। क्लास समझे। हाँ। हाँ। महाराज और जी, एक मिनट, इसका एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो चीज हम सामने देखते हैं, यदि हमने शक्कर देखी और शक्कर खाई तो मीठा लगा तो हमको आनंद आया, सुप्रीम ब्लिस हमको देखने को मिलती नहीं है, तो इसलिए हम उस तरफ भागते नहीं है। जब तक हमें वो मिलेगी नहीं, हम भागेंगे कैसे? बड़ा मजा है, जितना भी मिला है उससे हम आते हैं, खत्म हुई बात। हाँ, वो नहीं, मेरा वो कहना है, यहाँ पे मेरा बात एक, ठीक है, नहीं, मेरा एक बड़ा ठीक सवाल, है। इसलिए सप्लीमेंट्री सवाल ये आता है कि सुप्रीम ब्लिस जिस प्रकार से शक्कर और रबड़ी और रसगुल्ला मिलता है और आनंद आता है, तो सुप्रीम ब्लिस हमको बचपन में क्यों नहीं मिल पाती है, उसका भी एक सवाल खड़ा है कि आप बताएं कि जैसे हमको शक्कर मिल गई, ये क्यों नहीं मिली? नहीं नहीं, प्रश्न ये है कि सुप्रीम ब्लिस क्या आवश्यकता है? शक्कर से ही तुम संतुष्ट हो गए तो सुप्रीम ब्लिस की क्या आवश्यकता है? जी महाराज, जी महाराज। हाँ हाँ, सुप्रीम ब्लिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, पर प्रश्न ही यदि नहीं वो उठता है। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि वो कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता तो शायद हो सकता है कि मैं रबड़ी नहीं खाता, रसगुल्ले नहीं खाता, ब्लिस की ओर अरे, भाग। एक बच्चे को पति पत्नी का जो सुख मिलता है उसकी कल्पना भी हो सकती है क्या? हाँ, नहीं, जी। तो फिर अच्छा, राइट, चलो महाराज जी आगे बढ़िए। मेरा दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर रेस्टलेसनेस फॉर गॉड? क्या है तुम्हारा? रेस्टलेसनेस फॉर गॉड के कारण क्या है? एक तो दुख है, दुख Yes. makes a person restless for something higher. What are the other reasons? No, what are the reasons for restlessness? Anything can, if you have a concept of God अच्छा, Yes. and if you are dissatisfied with the world and if I have got a feeling that if I get God, then I will be happy, then only restlessness will God will come. जब संसार से पूरी तरह से वैराग्य हो जाएगा, संसार से पूरी तरह से डिसइल्यूजन हो जाओगे, हताश हो जाओगे, तभी भगवान के प्रति रेस्टलेसनेस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कैसे आएगी? जी, जी। तो the restlessness of God also is in various stages or various levels. जैसे रेस्टलेसनेस कहाँ आती है, किसको आती है?
जैसे हम लोग को थोड़ा बहुत तो आता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमने कुछ तो हमने अटेंड। सुन लिया है। हम सुनते हैं रामकृष्ण ठाकुर को हुआ था, भगवान है, उससे आत्मस्तुति होती है, पढ़ पढ़ के थोड़ा सा आता है, हाँ थोड़ा सा कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो, कभी व्याकुल होते हैं थोड़ी देर के लिए। ये तो इस प्रकार का हमारे भीतर लगता है, विचार के द्वारा, जी विचार के विचार द्वारा। के द्वारा, अनुभव के द्वारा, हाँ लोगों की, संतों की जीवनी को पढ़कर हमें हमारे जीवन में। हाँ हाँ। ये संस्कार भी होता है ना, एक संस्कार के चलते भी होता है, पिछले जन्म का संस्कार। ये भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं इसके लिए। खास कर संस्कार भी हो सकता है। हाँ, द पॉइंट इज, हमारा प्रश्न जो है वो ऐसा है कि उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हाँ, वे मल्टीपल चीजें हो हम्म। सकती। और मेरा तीसरा सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है, व्हाई इज ग्रीफ द कॉमनेस्ट रीजन टू गेट अट्रैक्टेड टू गॉड और स्पिरिचुअल जर्नी? भाई, ये ग्रीफ, दुख, दुख ही सबसे कॉमन कारण देखा जाता है स्क्रिप्चर्स में, जो अ, हमें गॉड की तरफ ले जाता है या स्पिरिचुअल जर्नी में डालता है। वो ये ऐसा है कि क्योंकि वो ग्रीफ एक्सपीरियंस और हॉलोनेस ऑफ संसार का जो हॉलोनेस है उसको वो एक्सपोज कर देता है। जी, तो दैट इज व्हाई इट इज द कॉमनेस्ट रीजन। हाँ, यू सी, तुमने जो क्वेश्चन किए ना, जी और इज इट द ओनली रीजन? ना, रीजंस कुछ भी, भगवान की तरफ जाने के रीजंस तो कई हो सकते हैं। एक, हाँ, अभी हमने बात करी उसकी। हाँ, वो तो हो गया है। तो और ये तुम्हारे जितने क्वेश्चन है उससे सब उसी से मिक्स्ड अप रिलेटेड इस प्रकार रिलेटेड है, से है। हाँ, रिलेटेड। हाँ। तो वो ऐसा है कि हॉलोनेस ऑफ द एक्सपीरियंस होने पर ये लगता है इसमें कहाँ जीवन में लास्टिंग सेटिस्फेक्शन संसार में नहीं है। तो ये विवेक नहीं होगा तब तक भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। राइट, ठीक है महाराज। मेरा अगला सवाल है, इट इज ऑन पेज 353, बॉट नीचे की तरफ है, बॉटम हाफ ऑफ द पेज। Sri Ramakrishna, when asked, is it possible to realize God in life, he replied, faith alone is the key to success. तो मेरा सवाल ये है, उन्होंने फेथ कौन की सा, बात, एक मिनट, पेज पेज बोलो तो। 353 353, हाँ, 353, वो करीब बॉटम हाफ में है थोड़ा सा, जब डायलॉग्स हो रहे हैं तो उनको पूछा गया, हाँ। इज इट पॉसिबल टू रियलाइज गॉड इन लाइफ? हम्म। तो उन्होंने उसके जवाब दिया, फेथ अलोन इज द की टू सक्सेस। Now, what is your question now? क्वेश्चन इज, महाराज, हाँ, तो हाउ टू डीपन वंस फेथ, मैं फेथ पे सवाल है मेरा, हाउ टू डीपन वंस फेथ। जैसे रामचंद्र दत्त जी का था, जैसे गिरीश घोष का था, तो उनका तो इतना जबरदस्त था, 100 to 200% फेथ था, जैसे कहते हैं। अच्छा, तुम्हारा ये तुमने जो मेरे को क्वेश्चन भेजे उसमें ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? दूसरा नंबर? शायद दूसरा है महाराज। अच्छा, ठीक है। नाउ दैट स्टडी द लाइफ ऑफ सेंट्स, ओके। साधक who had great faith, बिना उसके नहीं होता। तो ये संतों की जीवनी पढ़ो, सूफियों की जीवनी पढ़ो, और जिन्होंने भगवान के ऊपर वो था, अपना जीवन उन्होंने भगवान पे लिए निस्वार कर दिया। इस प्रकार के ग्रेट फेथ वाले जो लगते हैं, उनकी जीवनी पढ़ने से फेथ बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। कुछ नाम बताएं, जैसे हम अभी तो मैंने बताया ना, रामचंद्र दत्त, गिरीश घोष थे, नाग महाशय थे, और फेथ
ऐसा है कि जैसे क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म में, मुसलमान इस्लाम में हाँ वेद बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ तो उसमें राबिया का जीवनी पढ़ो, राबिया, हाँ हाँ, बायजीद बस्तामी का जीवनी पढ़ो। राइट। ये इस प्रकार के हैं जो भगवान के नाम पे ही सब कुछ अर्पित कर सकते थे। और क्रिश्चियन सेंट्स भी हैं कोई महाराज? क्रिश्चियन सेंट बहुत सारे हैं। नहीं, जिनका ये फेथ फेथ पे बेस करके चले थे। एग्जैक्टली फेथ के बारे में मैं नहीं कह सकूंगा। हाँ हाँ महाराज जी, ये 16 डिसाइपल्स का भी तो है ना? नहीं, ऐसा है कि यूं तो जहां भी संत होंगे वहां पे फेथ होगा ही। हम्म ये संतों की जीवनी किसी कहीं पर भी पढ़ेंगे, बिना फेथ के तो जीवनी संत होते ही न, हो ही नहीं सकते ना। हम्म। तो इनको पढ़ पढ़ के ही अपने फेथ को और बढ़ाना है। हम्म। जी महाराज, ठीक है। बेसिकली रीडिंग द लाइफ ऑफ द सेंट्स, और कहीं ना कहीं हर सेंट को फेथ ने कहीं ना कहीं छुआ है। वो तो हमेशा उनको टेस्ट हुआ है, जिसे कहते हैं ना, फेथ का हाँ, टेस्ट हुआ है। जैसे हम लोग एक एक्सट्रीम भी देखते हैं जहां विवेकानंद जी को ये डेवलप करने में काफी टाइम लगा। वो हर बार डाउट में ही रहे हैं। और Test. ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जो मॉडर्न माइंड था उसको मानो रिप्रेजेंट करते थे। रिप्रेजेंट करते थे। ये स्केप्टिक माइंड जो है, मॉडर्न माइंड है, उसको रिप्रेजेंट करते थे, और हाँ इसलिए उनके लिए वो स्ट्रगल किया श्री रामकृष्ण से। क्योंकि आज के जमाने में तो कोई फेथ मानेगा नहीं, ब्लाइंड जी फेथ नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानता आज के जमाने में। जी महाराज। ये तो मटीरियलिस्टिक जमाना है, या रीजन रीजन पे बात करने वाले हैं, तो इसलिए वो लोग फेथ नहीं माने। इसलिए स्वामी विवेकानंद को एक मानो रिप्रेजेंटेटिव है जो हाँ हाँ इस सारे थिंकिंग को रिप्रेजेंट हाँ, मॉडर्न थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता करते है। उसने किसी को, उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने किसी चीज को ठाकुर के कहने से नहीं माना, वो तो हैं। नहीं खुद ही माना। बोलते थे। हाँ खुद ही उन्होंने कहा था, मैं एक एक चीज के लिए उनसे लड़ा हूँ। जी जी, ठीक है महाराज। मेरा अगला सवाल महाराज, ऑन पेज 354 सेकंड पैराग्राफ, where Ramakrishna gives an example of a typhoid patient. वो टाइफाइड पेशेंट का एग्जाम्पल देते हैं। तो मेरा कहना है कि टाइफाइड पेशेंट हैज बीन इक्वेटेड विद समथिंग लाइक, जिसको हम भव रोग कहते हैं। हाँ, उसको तुम पूरा पढ़ो तो। तो, तो क्या मेरा, पढ़ो? पढ़ो, मेरे पढ़ेंगे। पास सामने में है। A हाँ typhoid पढ़ो। patient is, A typhoid patient is a delirious state, clamors to take gallons of water and heaps of rice, but the physician pays no heed to these entreaties, nor does he prescribe medicine at the patient's dictation. He knows what he is doing. now ask the question. तो मेरा सवाल है कि ये तो इट हैज बीन इक्वेटेड विद भव रोग, सांसारिक मतलब भव रोग को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि गॉड इज द वे। नाउ मेरा सवाल ये है, इन द भव रोग, फॉर अस, हु इज द डॉक्टर? इज इट द ह्यूमन गुरु और इज इट द इष्ट? जो हमारा, हम खबरों की माना यहाँ कहा है, पेशेंट नो। गुरु, नहीं, गुरु जो होते हैं वे, तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो मेरा सवाल है कि यहाँ पे जो ह्यूमन गुरु हैं वो हमारे मतलब भवरोग को निकालने आए हैं, या हम इष्ट को ही मान के चले? नहीं नहीं, यहाँ तो ये तो फिजिशियन की बात हो गई ना। हाँ, तो हमारा फिजिशियन कौन है, मैं यही कहना चाह रहा था। हाँ, और तुम्हारे फिजिशियन जो तुम्हारे पास सामने गुरु आएंगे वो, तो ये गुरु जो जिन्होंने तुम्हारे हमें तुम्हारे तुम्हारे कहने से तो दवाई नहीं देंगे ना। जी जो ठीक समझेंगे वही देंगे। जी, तो हमारे जो इष्ट, जो हमें दीक्षा दी है, दीक्षा गुरु हैं, या जो हमारे इष्ट हैं वही हमारे गुरु हैं? नहीं नहीं, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। अच्छा। तो हमने कहा कि हम तो मिशन हम
मेडिकल छोड़ के मिशन ज्वाइन करेंगे। हाँ तो उनका नहीं, मेडिकल करो। राइट हमारी बात थोड़ी मानी उन्होंने, राइट। जो उन्हें ठीक लगा ओ उन्होंने कहा। हाँ हाँ, उन्होंने ही गाइड किया कि आप पहले वो खत्म करो फिर आगे बढ़ो। हाँ, तो उन्होंने ही गाइड किया, वो राइट। बाद बाद में जो है मन मन गुरु बन जाता है, ये बात हाँ, बाद में मन गुरु बन जाता है। ठीक है महाराज। Swamiji, can I ask a related question here? Can अभी I? करने दो, ये ना। Okay, I won't break the link. I won't break it. On page 357, Maharaj, again, next question. First paragraph, under the topic Tattva Swara, तत्व सार। Tattva Sara. So, Thakur said to Ram, why are you writing all these things? You will see later your mind will be your guru. अभी अभी जो यहाँ- बताया, अभी अभी जो बताया। हाँ, तो मतलब वो कह रहे थे कि तुम ये सब क्यों लिख रहे हो, योर माइंड विल बी योर गुरु। तो वो उनको रोक रहे थे लिखने से और कह रहे थे तुम्हारा बाद में तुम्हारा मन ही गुरु हो जाएगा। व्हाट डिड ठाकुर मीन बाय दिस? ये और ठाकुर जो क्या, क्वेश्चन, तो ठाकुर क्या क्या मीन कर रहे थे, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे थे रामचंद्र दत्त को? ऐसा है कि भाई यार, यू वेस्टिंग योर टाइम इन राइटिंग। उन्होंने सोचा है कि मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब से पढ़ूंगा उसको। जैसे हम लोग राइट वचनामृत पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ। राइट राइट। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है, तुम अब साधना करोगे तुम्हारा मन ही गुरु बन जाए। ओ, तो बेसिकली वो कह डोंट रहे तुम, वेस्ट। हाँ 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 महाराज। उसके बस बाद में महाराज, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप काम चल जाए। हाँ, वो कह रहे हैं अभी मन गुरु साधना हो करो। हाँ, साधना करने के लिए बोल रहे हैं, एक तरह से वो साधना करने के लिए बोल रहे हैं ताकि माइंड बिकम्स दी ओन गुरु। जो वो जानना चाहते हैं वो अपने आप पता लगेगा। जाए। ठीक। अपने नहीं, वो कहते हैं ना, इफ यू थिंक ट्राई अपने वो। ठीक है। ठीक है, मैं अगले सवाल पे चलता हूँ महाराज। पेज 362 पे इट इज डिस्क्राइब्ड हाउ सिद्धू एंड एम मेट ठाकुर। जो मैम का जो नेफ्यू था सिद्धू, उसके साथ वो ठाकुर को कैसे मिले, इसका डिस्क्रिप्शन है उस पेज में। नाउ मैं ये सवाल कर रहा था कि व्हाई कुडंट श्री रामकृष्ण इवोक इवन ए लिटिल स्पिरिचुअल अट्रैक्शन इन सिद्धू? वो ऐसी क्या वजह थी कि ये पात्र के डिपेंड्स अपॉन द पात्र। एस्पिरेंट, सामने वाला सिद्धू नॉट ऑल वाज एन एस्पिरेंट, उसमें कुछ था नहीं। He was हाँ, hollow. व्हाई शुड स्वामी ठाकुर वेस्ट हिज एनर्जीज इनटू इट? Okay. अधिकारी, ही वाज नॉट एट ऑल एन अधिकारी और पात्र। क्योंकि उसके नेफ्यू थे जिंदगी भर वो तो नेफ्यू, तो तुम्हारे कितने संसार मित्र हैं। जी। हाँ हाँ, मेरे मेरे कितने नेफ्यू और कितने परिवारी व्यक्ति हैं। हाँ, आप कोई ठीक कह रहे महाराज। एक भी तो ठाकुर की तरफ देखता तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आप ठीक कहते तो महाराज। फिर देर आर ठाकुर क्या भगवान की तरफ नहीं देखते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल ऐसा महाराज। क्या आप लेते हो, ये तो पॉइंट ही नहीं है। हाँ, वो पात्र की वहाँ पात्रत्व तो नहीं है। 9 में से 90 में से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, हाँ, और गुरु देख लेते हैं, उसी को चुनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन ओनली हस्बैंड इज ए डिवोटी, वाइफ डज नॉट कम, और वाइफ इज ए डिवोटी, हस्बैंड डज नॉट कम टू द आश्रम। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसी तरह से महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 363, अगले पेज में, वेयर ठाकुर टोल्ड एम, you are like a yogi who has just left his seat of meditation. तो मेरा दो सवाल है इसमें। हाउ डज ए योगी लुक आफ्टर ए मेडिटेशन? वो क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं? ये पहला सवाल है। एंड मेरा दूसरा सवाल है कि एन एस्पिरेंट आफ्टर फिनिशिंग हिज मेडिटेशन उसे क्या करना चाहिए? जस्ट फर्स्ट है ये ऐसा है कि डिस्क्रिप्शन जो हैगा योगी का, या गीता और दूसरे शास्त्रों में मिलेंगे तुमको वर्णन। मैं नहीं जानता वो क्या योगी किस प्रकार का होता है, ये प्रकार का थोड़ा शायद गीता में मिलेगा, और अच्छा या फिर दूसरे शास्त्रों में कहीं पे योगी कैसा दिखता है ये मिलेगा।
अच्छा, महाराज मैं पर बताऊं, क्या वो बताओ? जो कथामृत में पिक्चर है ना, एक पक्षी अंडे के ऊपर बैठ के ताप दे रही है, एंड द कंसंट्रेशन एकदम आईज एकदम कंसंट्रेटेड अरे के ऊपर। वो तुम्हारे पक्षी की बात That नहीं is कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं। हाँ? पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, नहीं मानव की नहीं, बात। दैट इज ए सिंबॉलिक। ओहो, तो यहाँ That is a सिंबल की बात नहीं symbolic. हो रही है, ओरिजिनल की बात हो रही है। महाराज जी, महाराज जी, हम वो स्वामी ब्रह्मानंद का जो पिक्चर है जिसमें वो वाला ऐसा है कि ऐसे को ले तो आपको सकते? बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगे संतों के, जी जी, लेकिन ऐसा डिस्क्रिप्शन आप खुद ही देख लो। यतीश्वरानंद जी का पिक्चर हमने देखा था तो हम तो बहुत आकृष्ट हुए थे। हाँ हमने पहला पिक्चर यतीश्वरानंद जी का जब देखा था सबसे पहले, तो उससे ही हम आकृष्ट हो गए थे। हाँ। हाँ, तो यतीश्वरानंद जी का कितने सुंदर है पिक्चर। अब कहोगे कि संतों के पिक्चर, तो वो संतों के पिक्चर में तो सब संतों के लिए लाटू महाराज का संत एक पिक्चर होगा और तुरानंद जी का दूसरा पिक्चर होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। जी महाराज, जी महाराज। मेरा दूसरा सेकंड सवाल क्या महाराज है, था कि एक एस्पिरेंट को मेडिटेशन खत्म होते ही क्या करना चाहिए? क्वाइटली बैठे रहना चाहिए। ये यतीश्वरानंद जी ने वर्णन किया है सभी जगह, जितने भी जहाँ जहाँ पे संतों ने मेडिटेशन की बात कही है वहां तक किया है, बिल्कुल वर्णन किया है। हाँ आफ्टर मेडिटेशन शांत रूप से बैठे रहो थोड़ी देर तक। डोंट स्टार्ट एक्टिविटी इमीडिएटली, जी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ तक कि इंस्ट्रक्शन दिया गया, जब मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनिशिएशन के समय, वहां भी यही कहा जाता है। उसके बाद 5 मिनट चाहो तो कुछ गीता वीता पढ़ लो और उसके बाद और उठ भी जाए और गीता उस वक्त ना भी पढ़े तो किस तरह के एक्टिविटीज में इनिशियली रहना चाहिए? बिल्कुल इमीडिएटली शांत बैठे रहना पड़ेगा 5 मिनट तक। हाँ, और उठने के बाद शांत बैठने के 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो बैठने के बाद जो इमीडिएट जो हम उठेंगे, तो आप कहते हैं ना भाव बनाए रखना है सारा दिन, तो उसको कैसे करेंगे? नहीं, वो तो आपको चैंटिंग करो ना, गीता का चैंटिंग करते रहो। अच्छा, हाँ, अब हम तो ऑफिस में हमारे वार्ड में जाते थे तो गीता या इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट अपने पॉकेट में रख लेते थे। अच्छा, और बॉस नहीं आया है तब तक हम बैठे बैठे फ्री हैं तो 5 मिनट वो गीता को या इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ लेते थे। हाँ हाँ हाँ, तो जब हमारे जो मेडिकल कॉलेज में थे तब ये हम्म, एज ए हाउस जॉब जब सबसे बिजी पीरियड है उसमें हम इस प्रकार करते ही जी महाराज, कॉन्स्टेंटली अपने पास किताब मेडिटेशन इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट है, गीता है, पॉकेट में रखो, जब भी टाइम मिले उसको उठा के पढ़ लो। ये ठीक तो है करना महाराज, ही चाहिए। ठीक है महाराज। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फंडामेंटल। हाँ, कांस्टेंट कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की प्रैक्टिस, ठीक है। महाराज जी, ये मेडिटेशन का 3-4 मिनट बाद हम लोग जपम चालू कर सकते हैं? है? जप जप चालू कर सकते हैं? जप मतलब मेडिटेशन का 3-4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जप। अरे मेडिटेशन पहले जब किया कर जाता है, मेडिटेशन के बाद जब नहीं, मेडिटेशन के पहले जब किया जाता है। अच्छा। कितना नहीं समझते नहीं, मेडिटेशन का बाद बोल रहा हूँ मैं, मेडिटेशन का बाद। हो। पहले जब करते हैं उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्वाइट हो जाता है, मेडिटेशन समाप्त होता है तब चुप बैठे रहते हैं, उसके बाद उठेंगे तो यू विल गेट अप, अच्छा, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं? हाँ अरे कर, जब तो कभी भी करो दुनिया भर, दिन जब चाहो तब जब कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, महाराज जी, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं? स्तोत्र पाठ जैसे पकितिंग परमाम अभयं वरदांग, या ठाकुर जी का वो तो या सब समय कर सकते हो, सब समय हाँ, मेडिटेशन का बाद करना अरे ठीक है? मेडिटेशन से क्या लेना देना उसका, वो तो सब समय कर सकते हो, खाना खाते समय कर सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे स्तोत्र पाठ कर सकते हो। वो भाव हाँ। बनाए रखने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अच्छा हाँ, जी महाराज, जी महाराज जी, ओ प्रणाम महाराज जी, बाबा, थैंक यू महाराज जी। अरे क्या है, ये चीजें जो है कॉमन चीजें हैं, ये हमेशा रेगुलरली करते रहना चाहिए। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज 364 पे है, सेकंड पैराग्राफ। तो ठाकुर said
while discouraging M about संन्यास, तो संन्यास लेने की उत्साह हुई थी मास्टर महाशय को, तो उनको डिस्करेज कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, let nobody think that if he does not do mother's work, it would remain undone. The mother can turn even a straw into a teacher. इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ हुआ महाराज? वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे मास्टर महाशय को? कौन सा पेज नंबर बोलो? 364। ये सेकंड पैराग्राफ में है महाराज। बिल्कुल सही है। Let nobody think that if he does not do mother's work, it would remain undone. The mother can turn even a straw into a teacher. Now what is your question? मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं मास्टर महाशय को? When he says let मास्टर nobody think, महाशय को अहंकार न हो जावे। हाँ, क्योंकि वो सन्यासी बनना चाह रहे थे, उसके जवाब में उन्होंने डिस्करेज किया, लेकिन मास्टर महाशय अड़े रहे थे, क्योंकि वो अड़ रहे थे तब उन्होंने बोला। नहीं, उन्होंने तो बताया you are already well established in God. पंडित bound for that. No, यहाँ देखिए उसमें कुछ चीजें दूसरी हैं। You are well established in God already. Yes. जी महाराज। Is it good to give up all? God binds the Bhagavad Pandit, etc. चल रहा है। He keeps the Pandit bound for good of men. When M insisted, उसके बाद में कहा था, जी महाराज। let nobody think that if he does not do mother's work, it will be undone. The mother can turn even a straw into teacher. Now ये दो चीजें जो है ना, जी महाराज। ये उसमें कुछ जमता नहीं है। He became life, he wants to become a monk. But Sri Ramakrishna had set for him a different path and discouraged him from the idea. Now ये और उसके बाद नीचे का हिस्सा जो है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिखता कि वो संन्यास का, ये संन्यास से क्या संबंध है इसका। अच्छा। हाँ, यदि no one thinks that anyone can be done, तब तो ये giving as it were, giving a वो अच्छा you became a sannyasi doesn't matter, कोई और दूसरा कर दे। अच्छा। हाँ, तो ये तो मतलब ऐसा लगता है कि मानो ये उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो ये कुछ वो नहीं। When M insist, M insist कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम यू आर एंटाइटल्ड, ठाकुर ने, भगवान ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है, तुम उसके अगेंस्ट मत जाओ, ठाकुर ये बोल रहे हैं। हाँ। तो कहना है भागवत पंडित को एक वन टाइप से बाउंड रहता है, who will remain to explain sacred book। इस प्रकार से वो बार बार कह रहे हैं कि तुमको यू आर एंटाइटल्ड, ये तुम लोग यू आर सिलेक्टेड और कंपाइनिंग। हाँ, chosen, you are chosen, right। तो ये है ऊपर का और ठाकुर उसका प्रश्न का और उससे संबंध मिलता नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग जो हुआ है उसमें कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है महाराज, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है 365। उस पेज में एम सेड, लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी फोरसी गॉड्स प्लान। देन ही गोज ऑन टू डिस्क्राइब ठाकुर's प्लान फॉर हिम। वो ठाकुर ने उनके लिए क्या प्लान करके रखा था वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो मेरा सवाल है, आर वी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान? God has a plan for everyone, not we. Everyone has a plan. तो Everyone, एक प्रोफेसर के लिए प्लान है, एक साइंटिस्ट के लिए प्लान है, भगवान के लिए everyone, for everyone भगवान has a plan, God has a plan।
Not only we, everyone. So, so every time we have an up and down in our life, we take it as God's plan. Yes. See, if we take it as God's plan, we will find things are very, very different. Right, Maharaj. हाँ, अभी हमको लग रहा है ना, हम कर रहे हैं ना, इसकी सब समस्या हो रही है। Jai और Guru. जैसे लगेगा कि भगवान कर रहे हैं, तो देखेंगे सब चीजों में हमको कुछ मिलेगा, रीजन मिलेगा। There is some good behind everything. Something will be, your whole vision will change. That Bengali saying, Bhagavan ja karen, mongole jonnoi karen, is a very apt statement, I think. Can we say that? সকলই তোমারই ইচ্ছা। No, there is a saying, na, Bhagavan ja karen, mongole jonnoi karen. Yes, yes, It's a very yes, common yes. saying in Bengali. Yes, So yes. this can be taken. Maharaj, मेरा next question है, page 367, first paragraph. It is written that M visited courts. वो courts में जाते थे. Now, did M visit the courts to sharpen and learn more about observer skills? No, not at all. फिर क्यों जाते थे? वो देव में क्या है? Ethics. He used to go to sharpen his what is to understand what is witness. No. He details are given by himself. पढ़ो ना, देखो तो. It is given. If there is any mistake in it, then its value will diminish. People do not realize that at one time I had to study the rules of evidence. If a witness makes a single mistake, the entire case becomes nullified. Addressing the judge, the lawyer says, "My lord, this witness is not reliable. I used to visit the court and observed all these details. The evidence of an eyewitness is very valuable. For that reason, the judge asks, did you see this yourself? If a person has been and if the person has seen and heard something himself, his words carry weight. I checked all the facts and details before I published the Gospel of Sri Ramakrishna." He says only that is very clearly written. It is very clear, Maharaj. Now, Your answer is given here. it is very clear. So why ask questions? Yes. That last part is absolutely clear. Last question, Maharaj. In the last paragraph of page 369, what did Sri Ramakrishna mean when he said, "Please reveal yourself to them now and then"? How would she reveal herself? In what ways? You see, we are having some hints throughout. How will we encourage you yourself? Otherwise, how will they live? So we all also get some hints throughout. Otherwise, how are we living for such a time with faith in God? Right. कुछ न कुछ hints हमको मिलता रहता है. Yes. इसलिए चल रहा है. Yes. कुछ इंसाइट हो जाता है, कुछ ड्रीम देख लेते हैं, या कुछ अचानक हो जाता है. ऐसे चल रहा है, आराम से चल रहा है, ठीक है, कोई गलती कुछ प्रॉब्लम हो या इस प्रकार का कुछ न कुछ होता है. अच्छा, that is how she reveals herself. ठीक है महाराज, that's all. प्रणाम महाराज जी. Okay. Itu Ghosh. है, इति जी है, पर म्यूट है. भवन जी, उनको बुलवाइए. ठीक है, मैं कॉल करती हूँ. जी महाराज, मैं ले लूं? हो, चलो. शिवानी ले, फिर क्या करो, वो नहीं आया तो कुछ करना पड़ेगा. फिर हाँ, वो महाराज वहाँ आ गए. हाँ, आ गए. अच्छा, ठीक. चलो. हाँ,
अनम्यूट कर लो हेतु जी। ठीक है। राइट। अच्छा, महाराज जी हैं, प्रश्न का हाँ उत्तर जी। बोलो, चलो, शुरू बोले? करो, शुरू करो। अच्छा, महाराज पहला प्रश्न तो महाराज सुबीर जी ने पूछ लिया, और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, राम देन रेड सम ऑफ इट टू द मास्टर, द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पैसेज, हु सेड, oh, you have written those teachings, very good, listen, if you think that you have written them, you will get very little response from others, but if you think that the Lord is working through you, then it will be in great demand. So my question is, what Sri Ramakrishna found in Ram for which he forbade him not to write those teachings at that time? वो ऐसा है ना, वो बिकॉज ऑफ ईगो। Oh, यानी okay. कहते हैं कि मैंने, क्या है कि मेरे को लगा मैंने इतने सारा कलेक्शन किया है, मैंने हाँ, टीचिंग हाँ, इतने कलेक्ट किया है, मैं इतना बड़ा कंपाइलर हूँ, तब क्या कोई भी अट्रैक्टेड नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अब ये यदि सोचो कि भगवान मुझसे करा रहे हैं तो सब होगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग हम लोगों के लिए, हम साधुओं के लिए भी, हम टीचर्स डे के लिए खास करके हम लोग तो लेक्चर देते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने किया है, मेरा कितना अच्छा है, हुआ तो कुछ नहीं इफेक्ट होगा। लॉर्ड इज वर्किंग थ्रू अस, ये फीलिंग अगर नहीं जी, होगा तो हाँ, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रणाम महाराज। ओके, तो ये तो हो गया। शिवानी, शिवानी, हाँ जी महाराज। महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 363. At first sight, Ramakrishna recognized M's worth up to meditation. So, have you ever met with this kind of yogi or sadhu? If yes, then please share your experience. अब ऐसा है कि ये मैं अब कैसे कहूँ, लेकिन मेरे साथ ही हुआ। जब मैं सबसे पहले इंदौर में स्वामी हाँ जी। सत्स्वरूपानंद जी के पास में गया, तो जैसे ही मैं पहुंचा, क्या नाम है तुम्हारा, तो मैंने जैसे ही बोला कि वे जरा एक मिनट करो, वो इमीडिएटली इन्होंने अपनी डायरी में मेरा नाम लिख लिया, मैं एड्रेस क्या है तुम्हारा, क्या करते हो, थोड़ा सा डेटा उन्होंने ले लिया इमीडिएटली। तो आपके लिए साथ तो नहीं करते, और मेरे राज इमीडिएटली किया, और सारा जीवन उनके साथ संबंध रहा मेरा। उन्होंने संभवतः ये पहले देख लिया था कि ये साधु बनेगा, रामकृष्ण मिशन का सेंटर बनेगा, तो इसका कुछ होगा, तो इसलिए अच्छा। उन्होंने इस प्रकार किया, ये किया। उसके बाद में नॉट फ्रॉम ऑल, सबके लिए नहीं करते थे, और मेरे बारे में और भी कुछ साधु ने किया था, लेकिन अब तो मुझे याद। अच्छा, मैंने महाराज इसलिए पूछा कि ये मैं पूछना चाह रही थी कि इस तरह के होते हैं अभी भी लोग, इसलिए। होते तो होंगे भाई। ठीक है महाराज। सेकंड क्वेश्चन है, पेज 364, थर्ड पैराग्राफ. यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन गॉड ऑलरेडी. विच क्वालिटीज टेल अबाउट दिस, दैट अ पर्सन इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन गॉड? तो भाई ओनली ठाकुर नोस, हम नहीं जानते। आई कांट आंसर दिस। ये किसने बोला है, किस कौन ठाकुर बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? जी जी जी, ठाकुर नहीं बोला। ठाकुर ने, ठाकुर तो उनको लोगों के इमीडिएटली देख के पता लगते हैं कितने गहरे हैं। हाँ, तो हम नहीं बता सकते कि कौन कैसे पता लगा। ठीक है महाराज। थर्ड क्वेश्चन है, पेज 365, लास्ट पैराग्राफ. When I was a student in class 8th, up to my habit of maintaining a diary. So my question is this diary writing useful for us also? If Yes. yes, then please.
throw some light on this? भाई मैं एज ए स्टूडेंट, एक जब छोटा स्टूडेंट था, कॉलेज स्टूडेंट था, तब थोड़ा डायरी लिखता था, हाँ जी। and not as a monk. Never as a monk I have read any diary. And generally monks, we generally don't do write diary. मैं नहीं जानता, इसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं होती, कभी भी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता, कोई इंस्ट्रक्शन ना तो हम देते हैं और ना कोई हमको इंस्ट्रक्शन देते। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, अधिकांश लोग नहीं। अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा इंडिविजुअल, लिखनी क्या चाहिए। डायरी लिखोगे, क्या लिखोगे, ये सब जो है ना, ये वही तो। डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, और क्या क्या लिखेंगे सारा दिन में, कितना कुछ तो। हाँ महाराज ठीक है। अच्छी अच्छी किताबें हैं, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट है, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड है, गीता है, जो भी कुछ चाहा उसमें मिल गया। अब डायरी से क्या मिलेगा? मैं दिलीप भाई हाँ क्या बोल- वही, क्योंकि उनका तो पर्पस था ना, एक वो डायरी लिख रहे थे क्योंकि उन्होंने गॉस्पेल लिखना था, तो वो हाँ, ये इसीलिए मैं हुआ पूछ होगा रही खास थी। करके, तो ये बात है, ये- ही वाज गोइंग टू बी अ राइटर। लेकिन हाँ, महाराज क्योंकि हम लोग लिखेंगे तो यूजलेस थिंग्स जो सारा दिन करते हैं, और वो कभी हम देखेंगे भी नहीं पलट के पीछे। महाराज जी आपको डिफरेंट विजन्स हुआ, कितना विजन्स हुआ, कितना एक्सपीरियंस हुआ, वो सब तो आप लिख ही सकते हैं। तो वो क्यों लिखेंगे? आपके लिए बताने के लिए लिखेंगे? ये हम हमारा पढ़ने के लिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। हम क्यों बताएंगे आप? अरे वाह, ये क्या बात आप है। महाराज, नहीं, हम क्यों बताएंगे? आप तो देने के लिए बैठे हुए हैं, आप तो देने के लिए बैठे हुए हैं चलो महाराज चलो, जी। और कोई प्रश्न है? चलो। नहीं हमको महाराज, बहुत that's सारा it. विजन हुआ है महाराज महाराज जी, जी। महाराज जी, ये डायरी के बारे में स्वाध्याय के रूप में तो हम लोग डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैं करता हूँ। वो करो, वो दूसरी चीज है। वो तो कर सकते हैं ना, डायरी भले ही ना लिखे। वो आप कुछ भी करो, वो तो आप डायरी तो नहीं बोलोगे ना इसको। नहीं डायरी नहीं, वो तो हम कुछ ना कुछ लिखते, उस तरह से लिख सकते हैं, कुछ ट्रांसलेशन, कुछ डायरी से लिखना। तो पर्टिकुलरली डायरी मींस समथिंग वेरी पर्सनल, इट बिकम्स हाँ अ पर्सनल समथिंग। हाँ, डायरी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। महाराज जी, ये बचपन में हमको सिखाया गया था, बहुत से लोगों ने कहा कि तुमने अपनी डायरी लिखना चाहिए रेगुलर, डे बाय डे। और डेफिनेटली इसके ऊपर एक सेंटेंस भी लिखा हुआ था कि मैंने डायरी लिखी, उसके ऊपर सबसे पहला सेंटेंस था कि टू रीड दिस डायरी इज अ मॉरल क्राइम फॉर अदर्स, क्योंकि मैंने अपने अच्छे और बुरे सब अनुभव उसमें लिखे। तो और हमको ये बताया गया था कि ये लिखने से क्या होता है कि जब आप बाद में पढ़ते हो तो ये रियलाइज कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियां की है, जो आप न करें। डायरी का लिखना महाराज एक वेस्टर्न ट्रेडिशन है, तो वहां पे वो रोज लिखते हैं डियर डायरी करके, वो डायरी को ही एड्रेस करते हैं, डियर डायरी करके वो लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा डायरी लिखना और महाराज जी का डायरी लिखना में बहुत फर्क है। महाराज जी का तो कितने विजन्स, कितना आप वो लोग होता इसके है। ऊपर अलग से आप एक अलग जूम मीटिंग कर लीजिएगा, डायरी लिखना से नहीं लिखना। सही बात है। ठीक है महाराज, मेरे प्रश्न पूरे हो गए। थैंक यू। चलो, प्रणाम अच्छा महाराज। अच्छा, अब कौन रहा है? देवाशीष साहा। हाँ महाराज जी, हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 362। Why did M leave the room during the first meeting with Sri Ramakrishna in the middle of the beautiful atmosphere, as if somebody is talking? Would you please mute it? Hello? I repeat. Question number 1. Why did M leave the room during the first meeting with Sri Ramakrishna in the middle of the beautiful atmosphere, as if Shukdeva himself was speaking the word of God? वो ऐसा है, एक देयर इज अनदर डिस्क्रिप्शन इन विच ऐसा है कि मास्टर आया ऋषिदू के साथ, ठाकुर कुछ लोग भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, ठाकुर ने मास्टर ने देखा और उनका आहा, कितना बढ़िया स्थान है, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, लेट मी सी वेयर आई कम, मैं कहाँ पे आया हूँ, जरा मैं देखूं। ऐसा कह के वो बाहर चले गए देखने के लिए कि मंदिर, ये गार्डन दक्षिणेश्वर कैसा है, क्या है, वो करके, और बाद में लौटे कुछ देर बाद में वापस आए, आधे घंटे 15 मिनट बाद।
और तब वहां पे देखा कि कोई नहीं था, अकेले माँ ठाकुर थे और भक्त लोग चले गए थे। तब मास्टर पहले उनसे मुलाकात हुई थी, ठाकुर ने पूछा कैसे हो, कहाँ हो, क्या नाम है, हाँ, ये चीज गॉस्पेल में मिलता है ये। हाँ जी महाराज जी। ये भी वर्णन मिलता है ना। हाँ मिलता है, तो लेकिन इसमें तो मिल जाता है कि वो रीजन दिया गया है, वो खुद देखना चाहते थे कि वो कहाँ आए। पर महाराज जी ये क्या सच है कि ठाकुर उनको देख के कुछ बताए थे और उसको ठीक नहीं लगा तो बोला कि वो तो नहीं, बाद में जब अकेले आए थे दोनों बैठ के बातचीत की थी। अच्छा ठीक है महाराज जी। हाँ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन महाराज जी। हम्म। व्हाट आर द स्क्रिप्चर्स कॉल 368 में है, व्हाट आर द स्क्रिप्चर्स कॉल अवेस्ता एंड त्रिपिटका? हाँ, दोनों। फिर से हाँ, अवस्था एंड त्रिपिटक। त्रिपिटक। त्रिपिटक, हाँ, त्रिपिटक, यस महाराज जी, तो यस महाराज जी। अवस्था जो है, ये ये जो अपने वो होते हैं ना, अपने बोहरा जोरास्ट्रियनिज्म, बोहरा लोग, बोहरा लोग जो है जोरास्ट्रियनिज्म, ना, उनका स्क्रिप्चर है। अच्छा। पारसीज, हाँ। हम्म पारसी लोग। और हम्म। त्रिपिटक जो है ये बुद्धों का है। ओ अच्छा अच्छा। तीन तीन पिटक, यानी हाँ उसमें तीन है, विनय पिटक ऐसा करके तीन तीन नाम है। अच्छा। यानी तीन, जैसे वेद होते हैं ना, हमारे चार वेद हैं, हाँ 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 हाँ। वैसे उनके त्रिपिटक हैं, तीन पिटक। अच्छा अच्छा। जी महाराज जी। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 368. We need just one more to show the validity of every one of them and establish their overall harmony. The Gospel of Sri Ramakrishna compiled by M serves the purpose of admirably well. Serves this purpose admirably well. ये स्वामी भोजनानंद जी महाराज बोल रहे हैं कि गॉस्पेल का जो है जरूरत था, तो ये कि इसका थोड़ा बताइए क्या स्वामी भोजनानंद जी तब महाराज। कह रहे हैं कि दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। हाँ तो वो बताया कि एक शास्त्र और बन गया, तो देखो अब ये पता चल गया श्री रामकृष्ण के वचनामृत में सब बताया गया है कि बाइबल भी ठीक है और दूसरे वेद भी ठीक हैं। ये सब की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए एक और बाइबल होना चाहिए। दूसरा, आई विल नॉट राइट। महाराज जी, सॉरी। हाँ थर्ड कौन सा चैप्टर इसके वो है ये ये कहाँ क्वेश्चन है नंबर श्री रामकृष्ण। 368 पेज में है ना महाराज जी। ऐसा है ना कि श्री रामकृष्ण ने कहा कि जितने शास्त्र हैं, बाइबल भी ठीक है और उनका वो भी ठीक है, वो वेद भी ठीक है, ये सब जिन जिनके शास्त्र हैं वे ठीक है, ये बताने के लिए एक एक वचनामृत और होना चाहिए। ओ, यानी अगर एक ही वचनामृत ठीक होवे तो सब वचनामृत जितने भी हैं वो सब ठीक। अच्छा ये अच्छा। हाँ, जो तो मौत तो बहुत अच्छा, ठीक है महाराज जी। वही बताना। अच्छा हाँ अच्छा, नंबर क्वेश्चन नंबर 4 369, उसमें हाउ हाउ इज एम्स आई कॉन्शियसनेस सैचुरेटेड विथ रामकृष्ण's कॉन्शियसनेस? काइंडली डिस्कस विथ एग्जांपल, कल कुछ थोड़े ये ऐसा एग्जांपल्स। है कि एक बच्चा है, माँ का छोटा बच्चा है, बचपन का बिल्कुल छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है। तो माँ की आई कॉन्शियसनेस, चाइल्ड कॉन्शियसनेस भरी हुई है ना उसके अंदर, हम्म है कि हाँ नहीं। हाँ हाँ। एक हस्बैंड, शादी हुई हो, जल्दी इमीडिएटली शादी हुई हो, हम्म तो दोनों की एक हस्बैंड वाइफ का कॉन्शियस, हस्बैंड के कॉन्शियसनेस के अंदर वाइफ कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली बनी रहेगी। हम्म। उसकी आई कॉन्शियसनेस और वाइफ कॉन्शियसनेस एक हो जाएगी। हम्म उसी प्रकार हस्बैंड का जो है वो वाइफ में हस्बैंड कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली बनी रहेगी। उसी महाराज, प्रकार से है। अगर कोई बीमार है या अगर कुछ खराब हालत वो में है कोई तो भी हो हमारा। सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, वो हाँ बीमार जो होता है व्यक्ति, तो जो उसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जो है वो बीमार की कॉन्शियसनेस उस आदमी अच्छा के अच्छा। दिमाग में बनी रहती ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ है। में आया ये इस महाराज जी। प्रकार का, इसमें क्या है, दैट इज वेरी सिंपल। मैं समझ में आया महाराज जी। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 369। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ यहाँ से। श्री रामकृष्ण प्रेड, मदर, may those who come to you have all their desires fulfilled
but do not make them give up everything at once. Mother, well, you may do whatever you like in the Yes, end. If you keep them in the world, mother, then please reveal yourself to them now and then. Otherwise, how will they live? How will they be encouraged if they do not see you once in a while? सुबीर का थोड़ा क्वेश्चन में आपने टच किया था. My question is exactly the same. Why is mother not revealing herself to us a bit now and then as prayed by Sri Ramakrishna? क्योंकि बिकॉज तुम्हारे को संसार अच्छी तरह भरा हुआ है, यानी यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर लिविंग. पर लिखा है ना क्या है कि अगर आप तुम नहीं बताओगे तो ये लोग बचेंगे कैसे, हम छोड़ जा मर जाएंगे, ऐसा लिखा है ना. दे विल नॉट बी एबल टू लिव. लेकिन वी हैव गॉट लॉट ऑफ वर्ल्ड कॉन्शियसनेस इन अस. दैट्स व्हाई वी डोंट नीड मदर कॉन्शियसनेस फॉर सर्वाइवल. हमारा तो ये बुरी हालत है. जो भक्त है परम भक्त है, इसलिए ठाकुर बोलते हैं ये लोग परम भक्त हैं. इन भक्त को तुम्हारी कॉन्शियसनेस बनी रहने देना, नहीं तो वो बचेंगे कैसे. तो ट्रू भक्त हैं, उनको निरंतर भगवान का भाव बना रहता है. मदर्स कॉन्शियसनेस इज रिमेनिंग एंड दैट्स व्हाई दे कंटिन्यू. जैसे ठाकुर हम ने लोगों कहा, के यहाँ हमारे में क्या है, वर्ल्डली कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस दोनों मिक्सअप करके हमारा संसार चला रहे. जैसे कथामृत में महाराज कहते हैं ना कि बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है तो माँ उसकी तरफ नहीं जाती. हाँ, तो हम लोग भी आज खिलौने से खेलते रहते हैं. जब हम एकांत में माँ के लिए जाएंगे तब माँ का कॉन्शियसनेस बनेगा. लेकिन महाराज जी, ठाकुर जी ने तो सबके लिए बताया कि सब ये चीज ना, जो भक्त हैं उनके लिए, जो भक्त हैं. अच्छा जी महाराज जी. हाँ, जो ओके भक्त हैं. ओके, थैंक यू महाराज जी. प्रणाम महाराज जी. नमस्कार दिलीप भाई. हाँ, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम. महाराज जी, मेरा पहला सवाल है पेज 351. महाराज जी, is Ramchandra Datta was a scientist? How a scientist be converted into spiritualist? How is it possible without any efforts a man be converted into spiritualist simply by a single stroke of grief? But अरे साइंटिस्ट ने, ही वॉज ए डॉक्टर. yes, डॉक्टर था, डॉक्टर. केमिस्ट था. केमिस्ट था, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, साइंटिस्ट केमिस्ट थे. मेरा सवाल ये महाराज जी कि ये मटेरियलिस्ट होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, ओनली बाय सिंपल वन स्ट्रोक ऑफ ए ग्रीफ ही वाज अरे वन स्ट्रोक ऑफ ग्रीफ नहीं. भगवान बुद्ध के जीवन में तो कोई स्ट्रोक ऑफ ग्रीफ भी नहीं आया. स्ट्रोक ग्रीफ में उनके जीवन में कुछ ग्रीफ आया था क्या? नहीं. तो उन्होंने क्या देखा था? ग्रीफ देखी थी. देखी आया, उनके जीवन में नहीं आया, उन्होंने ग्रीफ देखी थी. हाँ, बस बस. अगर देखने अगर हो सकता है तो जीवन में आने से नहीं हो सकता. जिनको जीवन में परमात्मा का भाव है, भक्ति का भाव है, उनके जीवन में एक दुर्घटना हो जावे तो सारा जीवन बदल जाता है. उसमें क्या दिक्कत? जी जी, बराबर. बस ये महाराज, मेरा सवाल यही था कि यदि परमात्मा का भाव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो तो वन स्ट्रोक ऑफ ए ग्रिफ से इनको परमात्मा याद आ जाते हैं. याद आ जाता है, एकदम याद आ जाता है. और बाकी दूसरे लोग हैं ना, उनको हर बार लोग मरेंगे, हर बार जब मरेंगे तब भगवान को याद करेंगे, अरे ये जगत अनित्य है, ये सब है, और फिर वही संसार में फिर पड़े. जी जी, बस ये मेरा सवाल. महाराज, आज के जमाने में हम देखते हैं हमारे मिशन में भी कि बिकॉज प्रोबेबली ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक माइंड और जो भी है, तो हमारे आश्रम में डॉक्टर्स का मैं तो देखता ही नहीं हूँ. कोई डिवोटी आता है, वेरी फ्यू. और छोड़ो आगे चलो. नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका कारण क्या है कि डॉक्टर क्या, किसका कारण? हमारे आश्रम में
मुझे कोई एक दो डॉक्टर के अलावा कोई दिखता ही नहीं, nobody seems to be attracted, कोई आता ही नहीं। We don't know how many are becoming. How many doctors have already become Ramakrishna Mission monks? हाँ Absolutely. वो हाँ How लेकिन many monks are there? Number of 3 doctors are there in Ramakrishna monks in 3 in Varanasi himself itself. Yes. नहीं मैं मानता हूँ महाराज, लेकिन हमारे दिल्ली फिर- आश्रम में तो मैं देखता ही नहीं हूँ कोई डॉक्टर आता है। और दिल्ली तो छोटा सा आश्रम है, कहाँ मिलेंगे आप? नहीं, डिवोटी के बारे में बात कर रहे हैं महाराज, ये डिवोटी के बारे में बात कर रहे हैं। डिवोटीज में कुछ डॉक्टर है नहीं। अब आप लोग जानो ये डिवोटी, हमारे यहाँ तो रामकृष्ण मिशन बनारस में 3 मॉन्क हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा करते हैं तो वहां पे मोबाइल डिस्पेंसरी लगाना पड़ता है, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, कोई होता ही नहीं और कोई मिलता ही नहीं महाराज, इसलिए पूछ रहा था कि व्हाई अब कांट ये वी अट्रैक्ट। आप लोग जानो ये क्यों नहीं बनारस में क्यों नहीं होता है? Sharda Mutt is full of doctors. हमारे यहाँ तो सब हमेशा ही तो कोई दिक्कत नहीं होती थी वॉलंटियर। जी महाराज। Maharaj, my second question on the same page number 352. Ramakrishna opened the door himself and asked them to come in. Maharaj ji, what it denotes? Was Thakur knowing that Ramchandra Datta had come from his divine power, and that too for treating his nephew Hriday, who was suffering from fever? क्या क्या है ये? Maharaj ji, ये था। अरे ये ऐसा है कि वो ये तो जैसा तुमने कहा हाँ कि भगवान ठाकुर ने डिवाइन उससे देख लिया कि ये डॉक्टर है, हाँ, ये उनको डॉक्टर है। बोल दिया कि और इलाज करो, यानी ये चमत्कार हो गया, ये बोलो। हाँ, मेरा या ये फिर कहना ये अरे ये चमत्कार। बाई चांस है बाबा, बाई चांस नहीं हो सकता क्या? नहीं तो ये चमत्कार था क्या? अरे बाई चांस हुआ, ये क्यों नहीं मानते हो? अच्छा जरा सा चमत्कार, जो उसका चमत्कार, छोटे सी चीज तो क्या चमत्कार, अच्छा अच्छा। बाई चांस हो गया, देखा अरे तुम डॉक्टर है, देखो देख लो। जी, okay. Maharaj, my third question. Thakur started asking Ramchandra Dutt, who was facing numerous problems, without asking him what problems he was facing. Further, why Thakur has a special liking for him. Here it is written that he has a very special liking for him. Page 350. क्या है क्या है, कहते हैं has come only for this purpose, ना क्या है? पेज बताओ। Page number Everyone has 353. to undergo, but From the people very don't beginning, mind. Ramakrishna. Maharaj ji, ये sentence है, from the very beginning, Ramakrishna met Ram. His own. Page number 353, first paragraph. हाँ, From the very beginning, Ramakrishna made Ram his own and would often inquire about his personal life and mental conflicts. Ram was greatly attracted to the master of Sati. Yes. He has a special liking for him. Page तो 350. इसमें तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? हाँ महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, Thakur started asking Ramchandra that who was facing numerous problems without asking him what problems he was facing. That is one thing. ये यानी उन्होंने अपने डिवाइन पावर से जान लिया था क्या इनको तकलीफ है, और दूसरा why he has a special liking for him. ये तो होता है, इसमें क्या है? नहीं It यानी has कुछ come only for, जी नहीं, ये है ना, started visiting every Sunday, returning home. Soon Yes. felt Ram felt, from the very beginning, Ramakrishna made Ram his own and would Yes. often inquire about his personal life and mental conflict. yeah, अब yes. इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या नहीं। क्वेश्चन प्रॉब्लम? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बिना जाने इनको प्रॉब्लम्स थी रामचंद्र दत्त को, वे उन्होंने उनसे आगे होकर पूछा, और ना तो इसलिए कोई भी कर सकता है, हमारे कोई भी पास कोई आ जाए, हमारे नहीं। पास कोई व्यक्ति आता है तो हम प्रेम से बात करेंगे तो अपनी प्रॉब्लम बता देगा। अच्छा नहीं, पर ये स्पेशल लाइकिंग थी इनके प्रति, यानी कि कुछ पूर्व जन्म के जैसे कर्म रहते, कोई आता है तो एकदम वो होगा अब तुम मानना चाहो तो करो, इसमें क्या है? क्योंकि क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे साधक जाते हैं परंतु उनके भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, nobody asked him. That is why I asked the question कि why. नहीं ये हम उनके पास में गए, ठाकुर ने उनसे प्रेम से बात किया, हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया, उनको समझ में आ गया कि ये मेरा काम करेगा।
अच्छा, तो इसमें क्या बात? okay. Maharaj ji, now next question. Maharaj ji, what is the reason a bhakt has to undergo a number of miseries in his life? Can bhakt without miseries attain spiritualism? हो सकता है क्या कभी? क्या? A bhakt has to undergo a number of miseries in his life before attaining spiritualism. Is there any possibility that without attaining any miseries, a bhakt can attain spiritualism? अरे बुद्ध को तो मिस्री नहीं हुई थी। बुद्ध Okay, के जीवन में तो सुख ही सुख था, जी जी जी। मिस्री तो नहीं हुई थी। उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा था, मृत्यु के जीवन में थोड़ी मृत्यु हुई थी। नहीं महाराज जी, बराबर समझ में आ गई, बराबर। ये विचार की बात है, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the logic behind telling I shall die earlier if you publish his biography during his lifetime? ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग जान जाएंगे और फालतू लोग, मूर्ख लोग भी हम जान जाएंगे, अरे ये कौन है, देखें जरा, जाएं इसके पास देखने। बार बार इतने भीड़ लग जाएगी, फालतू लोगों की भीड़ लग जाएगी। ओके, और मेरे को तंग कर मार में, तंग कर मार। ऑलरेडी सेंसिटिव संत स्वामी जी ठाकुर एक बड़े सेंसिटिव व्यक्ति थे, साइकोलॉजिकली व्यक्ति थे, स्पिरिचुअली सेंसिटिव थे। सब लोग जाके पैर चरण छूने लग जाएंगे तो पाप लगेंगे तो नहीं, तुमको कितने पाप। अगर अभी तुम बता दोगे सब लोगों को तो मेरी मुश्किल हो जाएगी, अभी थोड़ा ठहर जाओ। Okay, right, right, Maharaj. Next question. Why the writing and the speeches of Ramchandra Dutt has not translated in any other language from Bengali? I don't know anything about it. How can I say why he has not been? नहीं, Because Maharaj, that was his own views. That was Ram's own views. Unlike Aim has written, recorded. He has not expressed his views, but Ram has expressed, commented on his own understanding. That is the reason probably it was not. Okay. We don't know. Chalo. Page 361. 2M, Ramakrishna and Christ were the same. Maharaj ji, actually the teachings and philosophy of Ramakrishna and the Christ are not the same. How one can follow both? अरे ये तुम पढ़ो ना, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ा तुमने? हाँ हाँ, पढ़ लिया महाराज जी आपने। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट कितना अच्छा लगता है जी। उसका। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट और वचनामृत में कोई झगड़ा है क्या? तो कई बहुत चीजें तुमको सिमिलर। रीता माँ आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। So many teachings are similar. हाँ, so many teachings are similar. इमिटेशन क्राइस्ट तो बहुत पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं, हमको कोई विरोध तो नहीं लगता है। वीडियो ऑफ कर दीजिए रीता जी। Why am wanted to be in the हो गया, म्यूट हो गया। महाराज जी आप म्यूट हो गए। नहीं, अपना ये भी म्यूट हो गया। दिलीप भाई दोनों को म्यूट कर दिया। ये हो गए अनम्यूट। यस, हाँ। एक मिनट। Maharaj ji, my question is why I am wanted to be in the background in the divine drama of Ramakrishna? So that the attention will be on Ramakrishna and not on the author. Acha. Okay. Page 366. When we look back on our past, we realize that God is making us to do everything. God determines beforehand what he will do through a particular person and then gets it done through him. Maharaj ji, my question is whether this is a consequence of the past karmas. देखो दो चीजें क्यों मिलाते हो, दोनों चीजें अलग है। नहीं, ये देखिए इन्होंने लिखा when we look back. पेज नंबर पेज 366. हाँ जी महाराज। हाँ पढ़ो। When you look back. When we look back on our past, we realize that God is making us to do everything. God determines beforehand what he will do through a particular person and then gets it done through him. Maharaj ji, my question is whether this is a consequence of past karma or how the God has made them to. जो जैन है ना, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो कहता है कि मेरे पूरे पूर्व जन्म के कर्म के कारण हुआ। हाँ। लेकिन जो वैष्णव है, भक्त है, वो कहता है भगवान के कारण हुआ।
अब तुम दोनों में से तुम खुद डिसाइड कर लो तुम क्या चाहते ओके ओके महाराज जी, बहुत क्लैरिटी हो गई, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गई, वेरी नाइस। जी महाराज जी, प्रणाम। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन है महाराज जी, कैन वी कंपेयर रामकृष्ण's लीला to that of Lord Krishna as it is written in the first paragraph of 369 पेज पे जो बताई गई है लीला, वो की वही गीता की है? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्या लिखा है क्वेश्चन, कहाँ लिखा है, दिखाओ पेज दिखाओ। पेज 369 फर्स्ट पैराग्राफ। M's पढ़ो। record of Ramakrishna's life is extremely interesting, in part because he himself played a vital role. Sometimes he was a silent witness of the divine drama of Ramakrishna. Other times, an active participation in the play. In addition, M's love for the master was phenomenal. His I consciousness was saturated with Ramakrishna's consciousness. If this were not so, he never could have produced the Gospel of Ramakrishna, which is unique among the world's religious literature. Faithfully and vividly, M recorded the master's samadhi and meditation, his prayer and worship, his dreams and visions, actions and devotions, purity and renunciation, signing and dancing. Here it is. Singing. Here it is singing and dancing, humor and mimicry, sadhana and pilgrimage, behavior and psychology, religion and philosophy, and his social and scientific outlook. But most important, M recorded Ramakrishna's conversations with God, as well as his talks with the people who come to him, his love and empathy for others, and his fervent concerns for his devotees. जो बीच में जो बताया है वो लीला लगती है, और जैसे कृष्ण की लीला थी जो। तो आप लगा रहे हो कृष्ण की लीला, आप क्यों लगा रहे हो कृष्ण की लीला? राम की लीला भी हो सकती है, किसी की भी लीला हो सकती है, उससे गड़बड़ क्यों करते हो? ये रामकृष्ण की अलग से लीला है। अच्छा, ओके 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 महाराज जी, बस खत्म, मेरे सवाल पूरे हो गए, प्रणाम। अच्छा चलो, शिवानी हो गया, जी देवाशीष हो गया, जी महाराज जी। दिलीप भाई हो गया, जी जी। अब आइए आप, कौन बचा है? सुधीर मजूमदार भी हो गया, सतीश। हाँ 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 हाँ, रीटा जी रीता रीता जी अपना है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। रीता जी, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। बोलो बोलो रीता, बोलो। अभी ठीक से सुनाई दे रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं पूछती हूँ स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ। चैप्टर 17 पेज 353 फोर्थ पैरा, answering Ram's question whether it is possible to realize God in this life. Sri Ramakrishna says, you get what you desire. Faith alone is the key to success. He sings a song describing the instruction. What is the meaning of you get what you desire? Kindly explain how to desire the lotus feet of divine mother with full faith. How what you desire? A बच्चा है, child. Yeah. He wants a lozenge. Yes. This is the meaning of desiring. Yeah. But he does not get. Then he weeps. And on the ground he topples. And weeps. बहुत जोर से रोने लग जाता है नीचे जमीन पे गिर के। तो माँ घबरा जाती है, उसके बहन सहेली की बोलती है, अरे ठहरो ठहरो, उसको मैं ट्रॉफी देती हूँ। So this is what is the meaning of what you desire. Yes. Got you get what you desire, isn't it? Yes. Now, yes. if you weep for God as like this, you get God. Yes, Swamiji. All right. But that is when we But weep for God. We don't weep for even one moment for God. No, we weep for God to give us something. हमको भगवान, we don't want God. Wanting God means just like a baby wants a toffee. Yes, Unless you do it, there is no desire at all. Yes, Swamiji. Chalo, I have understood.
Next question is chapter 18, page 363, first line. M's fourth question to Sri Thakur. Under what conditions does one see God? That is also my question. Thakur answered M. What conditions are required for people like me? What conditions are required for people like me? How to create such conditions? You say such conditions are not easily created. Yes, Swamiji, that is what I feel. Well, that is not easily created. You have to pray, you have to do satsang, remaining away from worldliness. Our mind is full of desire, so many things. You got four conditions are there. Sada Sarvada Bhagwan ka naam gungan. Constantly you must remember God. Sadhu sang karna, vivek karna. Those are the conditions Thakur has told, and they try to do it in your life. That's all. What else can I do? So in this, yes, Swamiji, you have said correctly, worldliness, but in spite of the worldliness, can we not create the conditions? Huh? In spite of the world, living in the world. See, the first question Master Mahasaya asked Thakur was, how can one see God, isn't it? Yes. Yes. And Thakur gave four things. Sada Sarvada Naam Gungan Karno. Constantly do remember God. Nitya Nitya Vivek Karo. Discrimination Karo. Third is Sadhu Sang Karo. Yes, Swamiji. And fourth is sometime in occasionally go into solitude and weep for God. Yes, Swamiji. You try to do it in your life. Yes, we have been trying, but don't know whether I'm successful. Now, only not merely trying, you will have to be crying. Okay, Swamiji. Now I Okay. changed to crying. Yes, Swamiji. Thank you, Okay. Swamiji. Thank you. Now, remaining next कौन है? निवेदिता, सतीश विवेक. Satish, Vivek, Nivedita, who are there? Both are there. नहीं. वो म्यूट है सतीश है ना, सतीश म्यूट है. सतीश जी अनम्यूट कर लीजिए. निवेदिता जी तो नहीं है अभी जूम मीटिंग निवेदिता जी में. नहीं है, नहीं दिख रहा है. स्वामी जी, तब तक मैं एक पूछ लूं? हाँ, पूछो. स्वामी जी, जैसे कि आप बोल रहे थे कि दीक्षा गुरु से जो भी डाउट साधना में हम पूछे ना, दीक्षा गुरु तो है नहीं. और नाउ व्हेन यू वांट यू रीच अ सर्टेन प्लेटो इन योर साधना, you need the physical presence of a guru to catalyze the sadhana and give you clear directions. Now, what do we do when you're Shiksha Guru, stuck? Diksha Guru नहीं, try Shiksha Guru. We can ask questions from the Shiksha Guru on Shiksha Guru. specific. Yes. If you know Diksha Guru, ask from Shiksha Guru. A specific question where you're stuck. Shiksha Guru, yes, you can ask your personal questions about your spiritual life, etc. Okay. That's what I wanted to find out. Thank you. What else you can do? You can ask Shiksha Guru if you have got faith and confidence. Yes. That's what I wanted to know. Thank you, क्या Swamiji. हुआ? सतीश, निवेदिता. Satish आ गए. Satish, you can ask your question. प्लीज अनम्यूट करो सतीश जी. Unmute. Maharaj, my first question. Unmute करो. महाराज, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. Maharaj, my first question. At various places in Vachanamrit, M has referred to Thakur as Sukadeva. Maharaj was
My question is, was Thakur an avatar of Sukadeva too? हम तो मानते हैं ना राम और कृष्ण के अवतार थे, तो he was guru of the gurus and embodiment of all religions. तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सुखदेव के अवतार भी थे? किसके? सुखदेव के, सुखदेव। आप जैसा बोलना है बोलिए, आपकी मर्जी में। सब अपने अपनी इच्छा से बोलते हैं ठाकुर को कैसा अवतार, इसका अवतार, उसका अवतार। ये आप जैसा चाहो वैसा चाहो बोलिए, आपकी मर्जी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ कहते हैं महाराज कि ठाकुर वेद व्यास थे, मतलब कि जितना अब ये आप उनको यू ज्ञान था डिसाइड। आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, यू डिसाइड। ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं महाराज। Once in a vision I saw Gaurang and his devotees singing kirtan in the Panchvati. महाराज Gaurang did his leela in Nadia. Why did Thakur saw him singing kirtan in Panchvati? Because he was standing in Panchvati. Thakur was standing in Panchvati. Thakur was standing in front of him. He saw it. Agar if he would have standing, if he were standing in the Nat Mandir, he would have said saw it, not Mandir. नहीं महाराज, मैं अच्छा ठाकुर समझ गया। मैं मुझे लग रहा था कि गौरंग वाज डूइंग लीला इन पंचवटी। नहीं, वो तो वो जो हम उन्होंने दर्शन किया, जहाँ खड़े हैं वहीं तो दर्शन करेंगे। अच्छा, ठाकुर वाज स्टैंडिंग। I saw Gauranga and devotee singing kirtan in the Panchvati. He was standing in Panchvati and he saw kirtan in Panchvati. Yes. ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। M wrote a short biography introduction for the first part of the original Bengali gospel. Maharaj, what happened to that biography? Is it available? I don't know. Maharaj, this is interesting because M would have recorded what Thakur might have said about himself. Already so much is already in the gospel available. Why don't you bother about all that? उसमें तो उनकी हिस्ट्री थी ना महाराज। ये जो कथामृत है वो जो चीजें पहली किताब गॉस्पेल में थी वो सारी की सारी नई गॉस्पेल में है। तो all descriptions, everything is there. जी महाराज, जैसे मतलब कि पहले जो साधना की मास्टर तो बाद में आए, लेकिन साधना ठाकुर ने पहले की, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी होगा इसमें। और तो सब वचनामृत में है ना, सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है आपको। जो मास्टर से बातचीत है सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramakrishna realized that the supreme Brahman and the divine mother are the same. Maharaj, was this realization that Brahman and God Ishvara are the same different from what is said in the Vedanta, that God is Brahman plus Maya? ये उससे क्या डिफरेंट क्या हम समझ में नहीं। ना ऐसे जो ब्रह्म है, हाँ जी, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो ब्रह्म और ईश्वर एक है, ऐसा है ना, ये बोल रहे हैं ना? जी ब्रह्म एंड डिवाइन मदर आर बात से। ब्रह्म यानी ब्रह्म और डिवाइन मदर, या तो ईश्वर के बदले डिवाइन मदर बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ जाता? ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉड डिटरमाइंस beforehand what he will do through a particular person and then get it done through. ये क्वेश्चन पूछ लिया है महाराज कि क्या देयर वर many people around him but he chose master to write the chronicle. Maharaj, is this true about M only or about every human being including us? You yourself have said in the first line. क्या है फर्स्ट लाइन में? क्या है तो तुम्हारी फर्स्ट लाइन क्या है बोलो तो? महाराज, ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया उन्होंने कि सिर्फ उन्होंने M का ही God determines beforehand what he will do through a particular person. हाँ ठीक है। And then that is done through him. तो क्या ये M के बारे में सच है कि सभी के बारे में सच है? सभी के बारे में, सभी के बारे में। जी हजार महाराज जी ऑलरेडी for me and you everything. जी and that is why Jyotish is there. Jyotish depends that everything is decided and Jyotish try to find it out. Right महाराज।
Maharaj, last question. It is not very relevant. Ram gave a lecture on Good Friday in 1893. Is Ramakrishna an avatara? And he also gave other lecture on during Thakur's lifetime. Maharaj, was Thakur aware of it? हाँ? हाँ, I 90 don't से वो तो know. चले गए थे ना, 86 ठाकुर में चले जानते गए थे। वो 1893 तो में दिया ना। 18 ठाकुर के जाने के बाद में हुआ ना लेक्चर तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये बाद में होगा। ठीक महाराज, ठीक 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 महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, हो गए, सब हो गए, कोई बचा तो नहीं? स्वामी जी, आपको कब कितने बजे फोन कर सकते हैं पूछने के लिए प्रश्न? हम आपको बता देंगे। जी जी, हम ही फोन करेंगे। हाँ जी श्योर, पर टेंटेटिव बता दीजिए ताकि हम अलर्ट अब रहे। हमारा कोई टेंटेटिव टाइम नहीं है। ओके, थैंक यू। हो गए सब क्वेश्चन? निवेदिता तो आई नहीं है, कौन क्वेश्चन किए थे लेकिन नहीं है। बंद करें? ये कुल्लू जी ने आज माफी मांगी थी, उन्होंने कहा कि कुछ काम से जाना था तो आज अटेंड हाँ, नहीं कर पाए। कुछ करने पर ठीक है, उन्होंने नहीं बोला था। 20 आदमी 20 आदमी हुए थे महाराज जी आज। 20 आदमी एक कितने? पीक टाइम में 20 हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 लोग क्या चले गए तो 16 ओके। 17। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। रामकृष्ण हरे। ठीक है भाई।